Hello everyone. Welcome to the next lecture on the GATE 2025 Mathematics. Today I will explain you how you can solve the complete solution on the topic partial differential equation. I will explain you with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg. You can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the CSR UGC and the GATE examination. You can see the last two lecture was on the LPP differential equations and the CSR Net Mathematics 2025 solution. You must follow this playlist and learn various shortcut tricks while attempting the examination papers. I hope you can subscribe my YouTube channel as well. Now, read the statement very carefully whenever you are in the examination hall. G is a function which is defined like this. F is a continuously differentiable function of degree 4. Then your target is to find the value of this expression. Which things come in your mind when you look about this quantity? Always the Cauchy-Euler equations. So that will be n into g, where n is my degree of the homogeneous function g. But since f is my unknown to us, provided the degree is given to you. Fine. So what is given to you? G is e raised to power 2x plus 3y into f. Fine. So I can start with the left hand side. X into del g by del x. Can you find the derivative of this? I can use the product rule. Plus e raised to power 2x plus 3y into partial derivative of x plus y into partial derivative with respect to y. So it's a 2x plus 3y into f plus e raised to power 2x plus 3y into fy. Fine. Now I can open this bracket. I can take an f common, e raised to power 2x plus 3y common. Fine. So it will be 2xf plus 3yf. Is it fine? Plus x into fx plus y into fy. Is it fine? Now can you get the value of this expression? Again it is similar to this homogeneous function. So this value is nothing but by degree n into f. Is it fine? Now rest is over. You can see I can take again f is common from the both side. It is 2x plus 3y. So it will be f into 2x plus 3y into 2x plus 3y plus 4. Now it is given as a 0. When it will be 0? When this value will be by, because exponential part can never be 0. F is a homogeneous function of degree 4. F can never be 0. Exponential can never be 0. Only term is on the line 2x plus 3y. Third option said except on the line. Only on the line, cancel. So B option is the right answer of this problem. Look at this another one. This is a very simple question. We all know you can start with a b square minus 4ac. Fine. So it will be 4 into x square 1 minus y square minus 4 into 1 plus x square 1 minus y square. So I can take an 4 is common. If I open this bracket, I can take an x square common, 1 minus y square common. It is 1 minus y square and minus 1, and the rest part is 4 into 1 minus y square. So it will be again, I can take an 1 minus, it will be common. This will be cancelled out. Minus x square minus y square minus 1. So therefore, this expression becomes minus 4, 1 minus y square, x square, y square plus 1. Fine. This is the value of the b square minus 4ac. Now look at the options. Elliptical. Elliptical means whenever you will see b square minus 4ac is less than 0. So you can pick any number. You can see is the equality appears. If I choose y is equal to 1, then what is the value of this? This is my 0. That means it is my parabola, but he said elliptical.
choose any number y which is greater than of 1. Say y is equal to 7. If y is equal to 7, this number will be my positive because this part will be my negative. So when it's a greater than 0, it's a hyperbola. Yes, it's a correct. Whenever y is greater than 1, it's a hyperbola, but he said ellipse. Whenever y is less than 0, less than 1, you can choose any number, say y is equal to 0, then this expression becomes 0, 0. So that will be -4, which is less than 0. That is elliptical, but he said hyperbolic. That's the wrong answer. B is the correct option of this problem. I hope you can like and comment on this video as well. Okay, consider the solution of this problem. Okay, what is given to you? This is the equation of the. Now you can see this equation is my heat equations. Fine. So I can say C is equal to 1. तो कैसे सॉल्व करेंगे हीट इक्वेशन को आप 15 सेकंड के अंदर? हैव यू वॉच माय दिस लेक्चर ऑन द हीट इक्वेशंस? In this playlist, have you seen about the lecture of the heat equation? Just let me open this lecture. You can get the answer in a 5 seconds. Believe me. Have you watched this lecture heat equations? अगर आपने नहीं देखा, देखिए एक बार. आप कहेंगे सर मजा आ गया. उसके लिए क्या चाहिए आपको? मैं आपको पहले बता देता हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स क्या था. अगर आपके पास कुछ भी हो, से साइन ऑफ अल्फा टी है आपके पास, मान लो, फाइन, तो आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हो. इट विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू टी. दैट्स आंसर. फाइन. तो पहले मैं इस u को सही करके लिख लेता हूं. मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दूं इसे. सो 2 साइन ए कोस बी. तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. तो अब आप इसमें अप्लाई करते हैं. तो क्या बन गया? यू एक्स कोमा 0 कितना बन गया? हाफ इज आउटसाइड साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. क्लियर? अब आप देखो इसमें अल्फा मिल गया आपको, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या बन गया? एक्स कोमा टी हाफ इज आउटसाइड, फाइन, ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर. इसका 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49. सी की वैल्यू तो आपकी 1 ही है, माइनस 49t साइन 7x प्लस, इसके लिए भी लिख लो इसी तरह से, ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू साइन एक्स. दैट्स ओवर. अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? π/4 और t पे चाहिए, तो वैल्यू निकाल लो इसकी. π/4 ऑफ t हाफ इज आउटसाइड. तो π/4 पे रूट 7 π/4 पे वैल्यू देख लेते हैं कितनी है. 7 π/4 को क्या लिख सकते हो आप? इट विल बी 2 पाई माइनस π/4. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया. इट इज -1/√2. सो दिस नंबर इज -49 डिवाइडेड बाय √2, और ये प्लस π/4 पे -√/√2. फाइन. सो √2 बाहर ले लेता हूं. सो 2√2 आ गया नीचे, तो ये 4 वाला कैंसिल हो गया आपका. फाइन. मैं यहां पे लिख देता हूं 1/2√2. ई की पावर -49 बाहर निकाल लेता हूं. 49t बाहर हो गया, तो ये नंबर हो गया आपका -1, और ये नंबर हो गया आपके पास 48 इंटू टी. फाइन. तो देखो 40 e रेज़ टू पावर 48 इंटू टी -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो देखिए कितना शॉर्टकट ट्रिक्स है आपके पास, इससे आसान कोई नहीं बता सकता आपको. फाइन. अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशंस, सिमिलरली लैपलेस इक्वेशन भी इसके अंदर है. फाइन. आपने ये py क्वेश्चन ऑफ द लैपलेस इक्वेशंस, py क्वेश्चन ऑफ द वेव इक्वेशंस, हीट इक्वेशन नहीं देखा, एक बार देखिए. आप कहेंगे सर कितना आसान तरीके से आपने एक्सप्लेन करा. सो यू कैन गेट द आंसर इन 5 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड. उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे. चलिए, ये क्या दिया हुआ है आपको? नाउ यू कैन सी दिस द वेव इक्वेशन. फाइन. तो जैसे वेव इक्वेशन है, तो इसका सी स्क्वायर कितना हो गया? 9. तो सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3. और आपको सॉल्यूशन किस पे निकालना है? π/2 π/6 पे. फाइन. ये मेरा वैल्यू क्या है? x है. ये वैल्यू मेरी t है. तो कैसे बताया था? एक बार इसका x प्लस सी टी निकाल लो, एक बार x माइनस सी टी निकाल लो. तो क्या आपका c कितना है? 3. तो π/2 प्लस π/2, ये पाई हो गया, π/2 माइनस π/2 0. तो फाइनल आंसर आपका कितना हो गया? दिस आंसर विल बी
एवरेज ऑफ फंक्शन ux, 0 e रेज टू पावर पाई प्लस e रेज टू पावर 0 प्लस इंटीग्रेशन करनी है आपको 0 से पाई इस लिमिट की। फाइन पार्शियल डेरिवेटिव की पार 1/2c के साथ, तो ये कितना हो गया 1 प्लस e रेज टू पावर पाई ओवर 2, c की वैल्यू कितनी है 3, 3 टू 6, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस x फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, इट विल बी 2/6। तो आपको क्या चाहिए, हाफ कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 1 प्लस e रेज टू पावर प्लस 2/3, तो ये कितना बन गया 5/3 हो गया आंसर। So e raised to power pi plus 5/3 of half. So pi over 3 plus c is my right answer of this. Now, 5. मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, एक बार देखिए आप वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन देखिए एंड सी हाउ मेनी सेकंड यू आर नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसलिए आप देखो आपका रिएक्शन डेफिनेटली ये होगा अगर आपने वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन का सॉल्व किया होगा पहले। चलिए लुक एट दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज अ कॉची इक्वेशंस, और ये लेक्चर भी ऑलरेडी आपके पास पहले से ही मैंने अपलोड करा हुआ है, और सेम क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन ऑफ द कॉची इक्वेशंस, सेम क्वेश्चन इस लेक्चर में आपको सॉल्व किया हुआ मिला गया। कैसे लिखेंगे, क्विकली से लिख देते हैं, dx dt और सॉल्यूशन आपका u में है। फाइन, तो x के नीचे क्या आपका 3, t के नीचे 1, कोफिशिएंट ऑफ t इज 1 और u का कोफिशिएंट u। सो पहले दो इक्वेशन से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3t इज माई कॉन्स्टेंट, और इन दोनों से सॉल्व करोगे सो t विल बी log ऑफ u इंटू c, और आपका क्या बन जाएगा u e रेज टू पावर माइनस ऑफ t इज अनदर कॉन्स्टेंट। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, u e रेज टू पावर माइनस ऑफ t इज 5 टाइम्स x माइनस 3t। फाइन, तो पहली इनिशियल कंडीशन फिल करते हैं, t की वैल्यू 0, u की वैल्यू cos x, t की वैल्यू 0, e रेज पावर 0 1, इट इज अ 5 ऑफ x। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, u e रेज टू पावर, सो 5 इज cos x, सो इट्स अ cos ऑफ x माइनस 3t, और आपका टारगेट है u निकालना इसमें से, सो u विल बी हियर। फाइन, अब आप ऑप्शन देख लेते हैं u वाले कौन से हैं, u ऑफ 2 पाई कॉमा पाई, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई इज माइनस पाई, so that's -1, so this will be e raised to power minus, so that's the right answer। एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो cos की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, लेस देन इक्वल टू here, so that's equality also there, this option also correct option। फाइन, नाउ अब v के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। v के लिए क्या आएगा, यहाँ पे dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, बाकी तो सेम ही है, और एक सॉल्यूशन तो इसका सेम मिल गया, x माइनस 3t इज इक्वल टू c1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, t विल बी -1/v प्लस c, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t प्लस 1/v इज अनदर कांस्टेंट। तो इन दोनों से भी सॉल्यूशन लिख लेते हैं, 1/v इज 5 टाइम्स x माइनस 3t। अब इस पे भी सॉल्यूशन लगा देते हैं, t की वैल्यू 0, v की वैल्यू 1/cos, फाइन, इट इज 5 ऑफ x, तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया t प्लस 1/v विच इज 1/cos x माइनस 3t, और आपका टारगेट इसमें से v निकालना। मैं t को इस तरफ ले जा रहा हूं और इसको सीकेंट बना देता हूं, तो v आपका क्या बन जाएगा 1/secant x माइनस 3t माइनस t। फाइन, अब आप देख लो क्या पूछा आपसे, vx,1 इज नॉट डिफाइंड, जैसे t की वैल्यू 1 होगी तो ये vx,1 कितना बन गया 1/secant x minus 3 minus 1 is not defined for any x, that's wrong। अगर आप x की वैल्यू को 0 ले लोगे तो secant 3 is a नॉन जीरो, 1 तो नहीं आएगा ना कभी, तो ये तो वेल डिफाइंड हो गया, पर ये कह रहा है नॉट डिफाइंड। v of x, 1 is not defined for the certain value of the x,
कब नहीं डिफाइन होगा? जब ये इन्फिनिटी जाएगा। ये इन्फिनिटी कब होगा? जब ये वैल्यू आपकी क्या आएगी 1। ये सीकेंड की वैल्यू 1 कब आएगी? जब 0 होगा। 0 कब होगा? जब आपकी x की वैल्यू 3 और 3 आपका डोमेन में आ रहा है। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 3 लिया, secant 0 is 1, secant 0 1 means 1 minus 1 0, infinity not defined. That's the correct option. So A, B and D all are the right answer of this problem. चलिए एक अगला देखते हैं। अगेन दिस द हीट इक्वेशन। फाइन। अब जैसी हीट इक्वेशन है तो आपका सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज माई 2। फाइन। लेकिन यहां पे अब आप देखो ये आपका साइन को साइन में नहीं दिया हुआ। फाइन, इट्स अ पॉलिनोमियल। फाइन, तो कैसे आप इसको फिर से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो? आप ऑप्शन से चलते हैं। u x whenever t is greater than equal to 0, तो t की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो आपका ये सॉल्यूशन क्या बन गया? 0 x, 0 इज लेस देन ऑफ 1/4 और x की वैल्यू कोई भी एक इसमें से ले लेते हैं। से x इज माई हाफ। क्लोज इंटरवल है। फाइन, x की वैल्यू 1 ले लो, देयर इज नो इश्यू। फाइन, जैसे आपने x1 लिया तो u x, 0 कितना बन गया? 0। फाइन, सो u x, 0 आपका 0, तो वो इसके बीच में लाई कर गया। कोई और पॉइंट चेक कर लेते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हो ना आप ऑप्शन। x की वैल्यू हाफ ली तो x, 0 कितना बन जाएगा आपका? हाफ। तो लेकिन हाफ इसके बीच में लाई नहीं करेगा। क्या ये हाफ इसको सेटिस्फाइड करेगा? नहीं करेगा। इससे 0.25, इससे 0.5, तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन u x, t is u1 minus x, u x, t is u of 1 minus x, t for all t greater than 0 and for all x. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आपने इस गिवन इक्वेशन में x को रिप्लेस करा 1 माइनस x से, तो सोल्यूशन रिमेन अनचेंज। फाइन, अब आप सीधे ही देख लीजिए व्हाट इज दैट, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव करा t का वो सेम रहा। सेकंड डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो x। फाइन, इसका सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा -1, सेकंड करोगे तो सेम रहेगा। तो इसका भी डेरिवेटिव 0, तो दैट इज द सेम, तो दैट मींस देयर इज नो चेंज इन द सॉल्यूशन। फाइन, इस तरह से भी समझ सकते हो। अदरवाइज आप क्या करो, इस 1 माइनस एक्स को कैपिटल एक्स ले लिया तो आप सीधा ही देख सकते हो ये वैल्यू u और कैपिटल एक्स के सेम होगा, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -1, और आपने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है तो वैल्यू विल बी ऑलवेज सेम। फाइन, अगर यहाँ पे क्यूब होता फिर नहीं सेम होना था। चलिए थर्ड ऑप्शन चलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? वेदर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। क्या रूल होता है? कोई भी फंक्शन आपका f है वो डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए? डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। फाइन, तो वही चीज यहाँ पे करते हैं। इसको f ले लेता हूं, 1 to 0 u स्क्वायर। अब इसके डेरिवेटिव से चेक करते हैं। x के साथ डेरिवेटिव करना आपको, नहीं सॉरी t के साथ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल हो जाएगा अंदर u, फाइन, इंटू डेल u बाय डेल t। फाइन, यही आएगा। फाइन, अब आप कैसे इसको फिर से 2 बाहर ले लेते हैं। फाइन, इससे u इंटू डेल u बाय डेल t ऑफ dx 0 to 1, ऐसा ही होगा। सो नाउ how you can see that, you can see I can substitute the value of the del u by del t from this side, so it will be 4 1 to 0 u x x. Why I substitute that? Because my integration is with respect to x and this is with respect to t. Now you can integrate by parts. It will be first function integration of this second function, it is my ux, fine, from 0 to 1 minus derivative of the first function into ux. Clear? Now clearly say this value will be 0 because u1 comma 0 is 0. If I substitute this as a upper limit u1 comma t and u comma, so that will be my 0. So this value will be 0. It is -4 integration of the ux square. So clearly say ux square is my always a positive.
So because of this negative, it is less than of 0. So once the first derivative is less than 0, that is a decreasing function. It is not. Fine. So this is the way B and C are the right answers. There is one more way. एक और मेथड है इसके पास मेरे पास सॉल्व करने के लिए. You can see that this is my heat equations and the given initial and the boundary conditions. You can see ये आपके पास initial और boundary conditions हैं. If you closely look about both the solutions, both the initials, that is the initial solution and the boundary solution, they are symmetric. ये symmetric है आपके पास. If both the initial and boundary conditions are symmetric, then the given solution is also symmetric. Fine. So once the given solution is symmetric, then definitely ux comma t is 1 minus x comma t. Fine. So therefore the B option again is the correct option. Fine. And decreasing the same rule as I explained you can use this one. Fine. For more details about the heat wave and Laplace equations, you must watch about by these 3 lectures in detail. I hope you can like and comment on this video. We will see the next lecture on the linear algebra very soon. Till then, you can share this video with your friends. Best of luck, students. Happy learning.